كان الله. Assalamu alaikum class. How are you people doing? How are you all? And welcome to the class. Kindly make sure that am I audible to you? Walaikum assalam, Manha. How are you doing? Okay, Walaikum assalam, Fatima. I'm great, Abdullah. How are you? Okay, so I will be asking assistant. I don't know about your Urdu's class basically. I'm good, Ayan. How are you doing? Walaikum assalam, Ibrahim. Okay, basically, class, I will be teaching you English. My name is Adila Naheed, and I am an MPhil scholar. Basically, we are having a trial class today, but we will be discussing a very important topic related to grammar. We will be starting it from grammar because you people know that most of your paper basically revolves around grammar. And then we will be somehow moving towards your textbook and different things in your textbook. Walaikum assalam, Amna. So let me write today's topic. We will be starting it from the very basic. ठीक है. Most of the students here, yes, okay, direct and indirect is challenging. So Manha, at the very start of the session, you are choosing, difficult things. They are not challenging. It will be okay. They will be okay, inshallah. No problem. Okay, okay, class. So starting it from the very basic. So can you people tell me that what do you think of a sentence? How do you define it? Let me go through your answers. Okay, group of words. Walaikum assalam, Isra. Okay, group of words. Okay, so Hania is saying that sentence is a group of words which make sense. Okay, good. Tell us something information. Okay, Ibrahim, and group of words which give complete sense. Nice, Ayan. G, and what about others? Okay, so let me go through the definition of the sentence. Class, you people have defined it very well. So basically, sentence. First, you people should know that it is always a group of words, of course. ठीक है. The second thing, or you can say the most important element of a subject is that कि वो आपको perfect sense दे. हम क्यों कहते हैं कि आपको sentence का perfect sense आना चाहिए या complete sense आना चाहिए, और ये क्या होता है basically अभी हम थोड़ी देर में discuss करते हैं. ठीक है. The third one, it is always have a subject, आप लोगों को पता होगा. ठीक है. Then it always has a verb, and then it always has an object as well.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई राइट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू दैट द cat is under the table, or let me write another sentence that kites are flying in the sky। पहले हम इस चीज को समझते हैं, क्लास समझने की ट्राई करते हैं बेसिकली कि ये कंप्लीट सेंस, और हम कहते हैं कि इसको आपको एक कंप्लीट आइडिया देते हैं इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। देखिए अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें, काइट्स आर फ्लाइंग इन द एयर या इन द स्काई बेसिकली। अगर आपको ये सेंटेंस यहां तक मैं बोल दूं कि काइट्स आर फ्लाइंग, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि समथिंग इज फ्लाइंग एंड द नेम ऑफ दैट समथिंग इज काइट्स। कंप्लीट आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। लेकिन जस्ट सपोज हम इस पार्ट को निग्लेक्ट करें, इसको थोड़ा सा साइड पे रखें और मैं सिर्फ आप लोगों को बोल दूं इन द स्काई। ठीक है। आप लोगों ने क्लास जैसे ही ज्वाइन की, मैं आते साथ ही आप लोगों को बोल दूं कि इन द स्काई। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से यही पूछना है कि मैम इसका तो कंप्लीट सेंस हमें नहीं नहीं समझ आ रही, लाइक कौन स्काई में, ठीक है, क्या स्काई में, जब तक हमने ये काइट्स की बात ना करें। तो इट मीन्स कि ये जो आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बेसिकली दे आर गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस। आपको जरूरत नहीं पड़ रही कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछें अपने आपके स्पीकर से कि आप किस चीज के बारे में बात करें। तो सेंटेंस का मतलब ही यही होता है कि आपको वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है। अब जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका कि आपके पास इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, देन पीपल शुड हैव अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स अनदर सेंटेंस। ठीक है। अब क्लास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि क्या जरूरी है कि सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। क्योंकि हम तो यही बोलते हैं ना कि सेंटेंस में ये तीनों चीजें जो हैं बेसिकली एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यू पीपल शुड नो कि सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट द सेंटेंस इफ आई से दैट शी ईट्स एन एप्पल। ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, वी हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है बेसिकली? द डूअर ऑफ द एक्शन, जो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। ईट्स खाना। ठीक है। वी हैव अ वर्ब, आर्टिकल को साइड पे करें एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इट मीन्स कि वी आर गिविंग द एलिमेंट्स आर द sentences गिविंग अस द एलिमेंट्स दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखूं, स्टार्स शाइन, अब इस सेंटेंस का तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट स्टिल हमारे पास ये सब्जेक्ट है एंड वी हैव अ वर्ब। और ये सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि स्टार्स दे आर शाइनिंग, आज सितारे चमकते हैं। कंप्लीट एंड परफेक्ट सेंस। तो समहाउ अगर आपको कोई कहता है या आप लोगों से पूछता है कोई कि क्या सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, जरूरी है, वेरी जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है। उसका सब्जेक्ट होना, उसका वर्ब होना, उसका ऑब्जेक्ट होना। बट हो सकता है कि कुछ सेंटेंसेस आपके पास ऐसे भी हो जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहे। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस कर लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई। This sentence does not contain any object, but we have a subject, we have a verb, and we are getting a complete sense out of it. हालांकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट उसकी जो सेंस है वो मिल रही है। ठीक है। सो दिस इज वर्ड बेसिकली, वो जो हमने सेंटेंस को डिफाइन करते वक्त बोला है कि वो कंप्लीट सेंस आपको देता है और उसके थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसके जिस तरह कहते हैं ना आप इंग्रेडिएंट्स बेसिकली, तो सेंटेंस के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आपके पेपर में आपके पास ये आ सकता है और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस होगा या नहीं होगा।
बेशक इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है बेसिक। ठीक है। सो आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। उसके बाद क्लास वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। और इससे रिलेटेड आपका जो एमसीक्यूज का पेपर होता है बेसिकली, वेट, गिव मी 2 seconds प्लीज। ओके, सो आपका जो एमसीक्यूज का पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव का पेपर होते हैं, उसमें लाइक फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू आपका इसी से रिलेटेड होते हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्लास बेसिकली हमने सेंटेंस को डिस्कस कर लिया, दैट इट कंटेन्स योर सब्जेक्ट एंड देन इट कंटेन्स वर्ब एंड देन इट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू अदर थिंग्स इन अ सेंटेंस। बेसिकली आपका जो क्लास सेंटेंस होता है वो दो एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। द वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट। अब मुझे पता है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का पता है। ठीक है। लेकिन प्रेडिकेट का कुछ को भी पता है। ठीक है, कुछ को अभी तक नहीं पता कि प्रेडिकेट बेसिकली होता क्या है, और ये आपके पेपर में आता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों में से ही किसी को सब्जेक्ट मेंशन कर देती हूँ, दैट इज अब्दुल हादी राइट्स अ स्टोरी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। यशफा इज मेकिंग फूड। ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंसेस है। ठीक है, अब्दुल हादी राइट्स a story, people are getting the complete sense out of it. It has a subject, it has a main verb, it has an object. It means it is a complete sentence, it is an example of a sentence. Then we have another sentence which says that Yashva is making food. ठीक है, we have a subject, we have a helping verb, then we have a main verb, and then we have an object. It is also again giving us the complete sense. बट नाउ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। वो दो, बेसिकली आप कह सकते हैं कि दो पार्ट से बना होता है। क्लास एनी टाइप ऑफ द नाउन विच इज डूइंग एन एक्शन, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका सेंटेंस में काम कर रहा है, जो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो इट वुड बी सिंपली द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट का आप लोगों ने याद रखना है कि वो आपका कौन सा पार्ट होगा। प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट के अलावा जितना भी आगे सेंटेंस का पार्ट होगा, उसमें हो सकता है मेन वर्ब आए, उसमें आर्टिकल हो, उसमें ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़ के आपके सेंटेंस का बाकी जितना भी पार्ट है, दैट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ एक सेंटेंस इसलिए सेपरेट लिखा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। अब नाउ यशवा इज डूइंग समथिंग, सो दिस इज योर सब्जेक्ट। यशवा के बाद सेंटेंस का जितना भी पार्ट है, इज मेकिंग फूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडिकेट। So I hope it is clear. Let me write more sentences. ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। एंड इससे रिलेटेड लाइक आपके पेपर में मस्ट एक एमसीक्यू होता है। इसमें आपको सेंटेंस गिवन होते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें बेसिकली सब्जेक्ट का तो वो नहीं पूछते, बिकॉज दे नो कि दिस इज वेरी इजी थिंग और स्टूडेंट्स को पता होगा, बट दे ऑलवेज आस्क यू अबाउट प्रेडिकेट। ठीक है, लेट मी राइट सम अदर सेंटेंसेस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज,
आप लोग खुद भी ज़रा हर सेंटेंस को एनालाइज करें और सोचें कि इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं। मैं आपको फिर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। Okay, class. So these are some of the sentences that I have mentioned over here. Let me describe. अच्छा, एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पेपर में बहुत इजी सेंटेंसेस गिवन होते हैं। ठीक है, वेरी इजी सेंटेंसेस। यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज योर सेल्फ कि मैम ये तो बहुत इजी सेंटेंसेस है। इससे ज्यादा इजी सेंटेंस आपके पेपर में गिवन होते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें बेसिकली या तो सब्जेक्ट बताएं या इसमें प्रेडिकेट बताएं। ठीक है। अब क्लास आई वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट बेसिकली आपका परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक है। सो अब आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं है कि आप सन को देखें कि सन इज डूइंग सम वर्क और परफॉर्मिंग सम टास्क, ये कोई काम कर रहे हैं तो आप सन को ही सिर्फ सब्जेक्ट में इंक्लूड करें। नो, सन से पहले अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, दा भी हो सकता है, तो आपने इस सारे को इंक्लूड करना है सब्जेक्ट में। ये नहीं कि ये आप लोग कहें कि सन एक काम कर रहे हैं तो दा को छोड़ दें। और ये भी आपका एमसीक्यू आता है। आप लोग उस लाइक दे वांट टू मेक यू पीपल कंफ्यूज कि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप लोगों ने अगर कोई आर्टिकल उससे पहले है, ठीक है, इंक्लूड है या इन्वॉल्व है, तो आपने दोनों को इन्वॉल्व करके आपने कहना है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट के अलावा बहुत इजी लाइक ये आप कह सकते हैं एक एलिमेंट है। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है सेंटेंस का, लाइक मैं इसको लाइक इस तरह जरा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। जितना भी पार्ट है सब सेंटेंस का जिसमें आपके पास वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब काम हो रहा है, शाइन्स ब्राइटली, इट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, कि कैसा चमक रहा है सन। तो ये सारा पार्ट आपका हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडिकेट। द नेक्स्ट वन इज दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है जी। सो हु इज डूइंग देयर वर्क? दे इज आवर सब्जेक्ट। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट। अब आप लोगों का ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग मेन वर्ब का सोचें, आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब्स भी आ सकते हैं प्रेडिकेट में। हेल्पिंग वर्ब्स आपके वो वाले वर्ब्स होते हैं जो आपके मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो आर है, इट इज सपोर्टिंग योर मेन वर्ब डूइंग। आर बी इंक्लूड है आपके प्रेडिकेट में, आर आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सब्जेक्ट में सिर्फ वो नाउन्स इंक्लूड होंगे जो काम कर रहे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। आप लोगों ने एनालिसिस कर ली होगी इस सेंटेंस की। बेसिकली डॉक्टर तो है हमारा नाउन, इट इज आवर सब्जेक्ट, बट वी नीड टू इंक्लूड द आर्टिकल एज वेल। सो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट, वेरी इजी। इसके बाद सेंटेंस का जितना भी पार्ट है, इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, ये सारा पार्ट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, लेट मी राइट ओवर हियर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, आप लोगों ने देखा होगा, मदर इज मेकिंग द फूड। सो हैव यू पीपल एनालाइज्ड इट? although you people cannot type over here, but आई होप आप लोगों ने इसकी रिकंस्ट्रक्शन की होगी कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है एंड देन इसमें आपका प्रेडिकेट कौन सा है। बेसिकली मदर इज समवन हु इज डूइंग वर्क, सो दिस इज योर सब्जेक्ट। और बिल्कुल इसी तरह इस सेंटेंस की तरह ही आपके पेपर में सेंटेंसेस गिवन होते हैं, या जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस आपको गिवन होते हैं। ठीक है। मदर इज मेकिंग द फूड, मदर इज योर सब्जेक्ट एंड इज मेकिंग द फूड इज योर प्रेडिकेट। ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि बेसिकली प्रेडिकेट में आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और प्रेडिकेट, लेट मी राइट ताकि आप लोग को याद रहे।
So basically, predicate can be a combination of main verb प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एक सेंटेंस भी मैं मेंशन कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स शाइन इन द स्काई, या शी ईट्स एन एप्पल. ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये आपके पास मेन वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट ये पूरा जो सारा पार्ट हो जाएगा, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिकेट. और ये आपके पास एग्जाम बेसिकली कॉम्बिनेशन हो सकता है. आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अभी हमने सेंटेंसेस भी किए हैं, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, यू पीपल कैन हैव अ मेन वर्ब एज वेल predicate में, and you people may have an object as well. For example, they are making a noise. So they is your subject, helping verb यहाँ से helping verb, main verb and object, ये सारा आ जाएगा predicate. आसान अल्फाज में अगर अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोगों ने समझना है कि सब्जेक्ट के अलावा जो आपका सेंटेंस में कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके अलावा सेंटेंस का जितना भी पार्ट होगा उसको आप लोग कहेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडिकेट. ठीक है. So class, this was today's lecture that we have basically discussed. Let me conclude our today's lecture. And this one is very important, related to your objective paper as well. It must include your one MCQ in your paper, and they ask you about, mostly they ask about predicate. They don't ask about subject because they know that you people are well aware of the subject. They ask about predicate. A sentence is a very simple type of sentence. ये नहीं कि आपको बहुत complex sentence given होता है, बहुत simple sentence आपको given होता है, और उसमें से आप लोगों से पूछा जाता है कि what is predicate. So till now we have discussed that sentence is something which basically contains a subject, a verb and an object, and it should give us a complete sense. हमने उसको भी देखा कि complete sense का मतलब क्या होता है. ठीक है. And then we had discussed the two very important aspects of a predicate, that is subject and a, sorry, sentence, subject and a predicate. Subject is someone who does or performs an action, and predicate is the all part of the sentence besides subject. Subject को छोड़ के आपके sentence का जितना भी part होता है, basically उसको हम कहते हैं predicate. I hope this is clear to all of you. Okay, so as I am not able to, receive your comments, but this was very easy, topic. And if anybody haven't got this or is not able to differentiate between a subject and a predicate yet, we will be discussing again this topic. We will be starting tomorrow's lecture from the same topic. We will be doing more examples ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आए. And from tomorrow onwards, we will be starting different types of sentences. We will also be going in a very detailed and comprehensive manner about tenses. ठीक है. टेंसेस ऐसी आपकी बेसिकली ग्रामर का पोर्शन है जो हमें 9th और 8th में करा लिए जाते हैं, बट आई वुड बी रिपीटिंग इट अगेन. वी विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी टेंस, क्योंकि आप लोगों को टेंसेस आएंगे, सो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आएंगे, आपको नरेशंस आएंगे. ठीक है, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होगी. So, like in a very detailed and comprehensive manner, along with the examples in Urdu, negative, interrogative, and positive sentences, we will be going through each and every tense. And also, we will be going through the textbook, the different units, and the poems that are included in your book. Will be providing you the notes as well. Okay, so someone has raised the hand, but for today we
are unable to answer, or you can say we are unable to type something over here. So I will be taking your questions tomorrow. Okay, this was all for today. We'll be continuing it tomorrow, inshallah. Till that, take care and Allah Hafiz.